Hello everyone, welcome back to Travel Storyteller. So I would like to know that how much battery range did we get in these three trips, Kabini, Gudalur and Chikmagalur. Two options, AC and DC, right? So when we are charging in home we use the AC, and when we are traveling outside then we use the DC. तो AC charging में कितना time लगता है? Hello everyone, welcome back to Travel Storyteller, जहाँ पे हम लोग कुछ बात करने वाले हैं रिगार्डिंग आवर कार किया क्लेविस EV. We will be talking about the battery charging time. Three big trips we have done, so we'll be talking about the range test 3 times and some pros and cons of having EV, especially the Kia Clavis EV. And if you have not subscribed to our channel yet, then do it right now. इस कार को लेके और EV को लेके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ला रहे हैं. We have done 3 long trips. One is to Kabini, one is to Gudalur, and one is to Chikmagalur. Chikmagalur, yeah. Okay. So I would like to know that how much battery range did we get in these 3 trips, Kabini, Gudalur, and Chikmagalur? During our Kabini trip, right? So we got a very good mileage, and I've posted, the observation that time, and it was clearly coming to more than 400, kilometer range. The drive that we did that time was more to extract the range. Other 2 trips that we did around, we got 370 range, and white fall down from 400 to 370 was for the obvious reason that the speed at which I was driving, the other one I was actually trying to check the the top speed of the vehicle, right? So एक trip में we got 410 in the Kabini trip, and in the other 2 trips in Gudalur and in Chikmagalur we got around 370-375 ka range. Trip in the first run the driving was not aggressive, I remember. So the similar kind of situation happened in the last 2 trips also, but the driving was more aggressive. And then Chikmagalur was a hill station also, so that may also add up to the equation that the mileage got dropped from 410 to 375. Two options, AC and DC, right? So when we are charging in home we use the AC, and when we are traveling outside then we use the DC. तो AC चार्जिंग में कितना टाइम लगता है? AC चार्जिंग में मैक्सिमम हम लोग जो चार्ज करते हैं वो है 7.5 किलोवाट आवर का चार्ज. उसमें अगर 0 से करना रहे तो आई थिंक 7 आवर्स में हो जाना चाहिए पूरा का पूरा चार्ज. यूजुअली हम पूरा 0 से तो करते नहीं हैं और 100% भी चार्ज करते नहीं है यूजुअली. सो यूजुअल ये में एटलीस्ट एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रेंज अगर आ जाता है तो हम उतना ही चार्ज करके छोड़ देते हैं, एंड देन वी ड्राइव फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक और समथिंग लाइक दैट, राइट? सो हाँ, उतना ही टाइम लगेगा, शायद 7 घंटा लग सकता है 7.5 में. और एक 3 पिन वाला जो है जो उसमें काफ़ी ज़्यादा लगेगा, उसमें शायद 17-18 घंटा भी लग सकता है वो पूरा चार्ज करने में. मगर इट डिपेंड्स, राइट? आपकी गाड़ी खड़ी कितनी देर रहती है. अगर आपकी गाड़ी खड़ी ज़्यादा देर रहती है, 7.5 का घर पे आप चार्जिंग सेटअप नहीं करना चाहते हो तो भी चल सकता है. आप 3 पिन में भी आप अपना काम निकाल सकते हो, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा देर खड़ी रहती है. रात को आप लगा सकते हो एंड इट कैन चार्ज, राइट? सो बहुत लोग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपने घर पे ही लगाते हैं, जो यूजुअली अपने घर पे ही चार्ज करते हैं एंड ऑल दैट. तो डिपेंड करता है. फॉर मी आई डिड नॉट बाई दैट, राइट? एंड देन आई एम नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम एज सच. 3 पिन वाले से ही मैं चार्ज कर लेता हूँ घर पे अगर चार्ज करना रहे. नहीं तो मेरे पास अदर ऑप्शंस भी है जो 7.5 वाला है, वहाँ पे मैं चार्ज कर लेता हूँ. और DC में कितना टाइम लगता है? When we travel outside, how much time DC takes? DC में आपका 80% तक काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाता है, ठीक है? डिपेंड करता है, 80% में जितना रेंज आता है उतना में आपको अगर बाकी रेस्ट ऑफ द जर्नी हो जाएगा
तो आप 80% तक कर लो अपना चार्जिंग। या हम लोगों को रहता है ना कि 100% तक ही करना है, नहीं तो फिर अच्छा रेंज ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, बाद में चार्जर मिलेगा नहीं मिलेगा। दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन यू आर गोइंग इन द लॉन्गर ट्रिप्स। सो डीसी चार्जिंग में टाइमिंग की अगर आप बात करो तो अगर आपका 20% से 80% है तो वो हो जाना चाहिए, मतलब 30-40 मिनट में आराम से हो जाना चाहिए 60 किलोवाट वाले में। तो उसमें क्या है ना, मैक्सिमम आपको पावर या फिर जो स्पीड है चार्जिंग का वो उस रेंज में आपको मिलता है। उसके बाद 100 के बाद जो है इसमें फिर अगर आप 60 किलोवाट आवर में चार्ज करते हो तो फिर आपको पूरा 60 पूरा स्पीड नहीं मिलेगा। 60 किलोवाट काफ़ी डिसेंट चार्जिंग है, उसका ऑप्शंस भी अवेलेबल ज़्यादा होता है 60 किलोवाट का डीसी चार्जर्स का। 30 से 40 मिनट तक 80% तक हो जाना चाहिए। उसके बाद शायद बाकी 20% होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है कि आपका जो किलोवाट है ना वो कम से कम होने लगता है, एंड देन इट टेक्स मोर टाइम दैट टाइम। तो just now we had a charging to AC का I can give you a figure that our car was at 22% and it was showing that to be 100% it would need 6 hours 40 minutes. So it is in 7.5 kilowatt charger, so that can give you an idea that how much time it can exactly take for charging in AC. माइलेज का थोड़ा बात करें, माइलेज कैसे? माइलेज मतलब इसमें तो किलोमीटर पर किलोवाट आवर का हिसाब बैठता है, ठीक है। तो अभी जैसे हम सिटी में चला रहे तो अभी ऑब्वियसली हेवी ट्रैफिक में अभी चला रहे हैं, 5.8 दिखा रहा है। ओके, सो ये तो सिटी में हो गया। और अगर आपको थोड़ा खाली रास्ता मिले, लेवल आप थोड़ा बढ़ा दो, लेवल 3 में चला हुआ है ना, दैट थोड़ा बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 8 भी मिल सकता है, 8-9 भी मिल सकता है। दैट्स डिपेंड्स ऑन आपने कौन सा लेवल ऑफ रीजन चूज किया है। देयर आर 4 रीजन मोड्स। रीजन नंबर लेवल 1 जिसमें अभी मैं चला रहा हूँ, और अभी मुझे 6.2 मिल रहा है फिलहाल। तो ये मतलब चेंज होते रहता है। फिर मैं अगर रीजन लेवल बढ़ाऊंगा तो बढ़ा देगा। तो दैट जिन लोगों को रेगुलर चलाना है, ज़्यादा किलोमीटर चलाना है, राइट, ज़्यादा टाइम तक गाड़ी चलाना है, तो उनके लिए ये सारे फिगर्स मैटर करेंगे। जो हमारे जैसे सिर्फ ऑफिस रन्स कर रहे हैं, वी हार्डली बॉदर, क्या चार्ज करेंगे, चलाएंगे, चार्ज खत्म होगा फिर से चार्ज करेंगे, दैट्स ऑल। हम लोग तो हेवी ट्रैफिक में ट्रैवल करते हैं। बेंगलोर का ट्रैफिक इज world known. We have noticed that we travel 17 kilometer and it consumes 3% on an average. But जब हम लोग हाईवे में जाते हैं तब हम लोग कौन से जन में ड्राइव करते हैं, but we get more than 9 also sometimes, 9.1 it reaches. नहीं, ऐसा नहीं है। ऑन एन एवरेज मैंने देखा है 7.3 के आसपास का माइलेज मिलता है हाईवे पे, ठीक है। तो इस बार मैंने ट्राई किया था लेवल 3 में। अच्छा। लेकिन आप जितना भी लेवल ले लो, हाईवे में आपको थोड़ा माइलेज कम ही मिलेगा क्योंकि स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहता है। मतलब सिटी में आप माइलेज निकाल सकते हो, थोड़ा बढ़ा सकते हो। अगर आप रीजन लेवल अपना बढ़ा लो तो आपका माइलेज भी बढ़ेगा, 8 तक आएगा, और हाईवे में 7.3 तक आएगा। मोर देन 5 months नाउ। हम लोग तो रिव्यू कर चुके हैं, ओनरशिप रिव्यू आर देयर इन अंडर आवर चैनल पेज, बट आफ्टर ड्राइविंग फॉर 5 to 6 months, what you are feeling, what are the positive and what are the negative, what are pros and cons? पहले दूसरे वीडियोस में भी बताया है, लेकिन रेगुलरली जब आप चलाते हो तो ऑब्वियसली देखो आपको अच्छा पिकअप मिलता है, वो एक अच्छा चीज़ है, राइट।
गाड़ी स्टेबल है, बहुत ज़्यादा जर्की टाइप का इसका मतलब ड्राइव नहीं है, स्मूथ ड्राइव है। इट्स वेरी वेरी क्लोज टू योर द ड्राइव दैट यू गेट इन आइस कार्स, ठीक है। तो जो कि कंफर्टेबल भी है, राइट। स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप इफ़ यू आर कैरिंग मैनी पीपल दे कैन ऑल go comfortably and enjoy the cabin space. बूट स्पेस भी अगर आप देखो तो अभी इसका कंपटीशन आ गया है ना, तो कंपटीशन मतलब इलेक्ट्रिक में 7 सीटर में तो आपके पास अभी 2 ही ऑप्शन है आई थिंक, मतलब हाँ 2 ऑप्शन नहीं है, और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए देर आर मेजरली 2 ऑप्शंस, राइट, जो देख रहे हैं। एक तो हो गया आपका XCV 9S, राइट, एंड देन दिस वन। तो ये दोनों में कंपैरिजन होता है, तो लोग बाइंग टाइम में ऑब्वियसली डिसाइड कर रहे होते हैं कि NNC ले, LFP ले एंड ऑल दैट, राइट, और उस पर कौन सा बेटर रहेगा एंड ऑल दैट, वो सब सोचते हैं। मगर जो आपका डे टू डे यूसेज में इट विल हार्डली मैटर। हो सकता है बहुत सालों बाद मैटर करेगा, बट अभी फिलहाल तो आपको कोई मैटर करेगा नहीं। NNC का एक अच्छा चीज़ है जो मुझे लगता है वो है कि ये थोड़ा हल्का होने की वजह से इसका माइलेज भी अच्छा आएगा शायद, मतलब XCV 9S से, जो एक 7 सीटर है। लास्ट मतलब बूट स्पेस विद सीट्स ओपन, राइट, तो अगर आपका लास्ट रो ऑफ द सीट्स आर आल्सो ओपन, वो दोनों में इसमें ज़्यादा स्पेस मिलता है आपको, ठीक है। थोड़ा सा मतलब को फिर भी, जैसे कि मैंने इस बार एक एयरपोर्ट रन किया, राइट, अपने इन लॉज को मैं लेके आया, उनके पास एक बड़ा बैग था, 2 छोटे बैग्स थे, तो मुझे फोल्ड करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, इनफ स्पेस था कि मैंने वो 3 सूटकेसेस रख दिए एंड मैं आ सकता। शायद XCV 9 इसमें ये नहीं होगा, आपको शायद सीट फोल्ड करना पड़ेगा लास्ट वाला। इस टॉपिक में मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। माई फादर इज 6 फीट 2 इंच एंड वी ऑलवेज थिंक कि ऐसा कार लेने पे उनका गर्दन में थोड़ा उनको बेंड होना पड़ता है, उनका लेग्स में प्रॉब्लम होता है। पैसेंजर सीट में तो वो बैठ ही नहीं सकते, उनका लेग्स एकदम फोल्ड हो जाते हैं, उनको हमेशा को ड्राइवर सीट में ही बैठना पड़ता है, और जब घुसते हैं तब भी उनका नेक बहुत टिल्टेड करना पड़ता है। बट दिस टाइम वी सॉ दैट ही हैड अ वेरी स्मूथ एंट्री इन द पैसेंजर सीट्स. His legs were properly kept, no folded. His neck was straight. He didn't have to tilted it when he was entering the car. So आप समझ सकते हो कि it's very spacious. और if you have family members who are seniors and they have a good height, then this is perfect car for them. We were very happy, right, with that kind of space in the car, right? हाँ, प्रैक्टिकलिटी तो मैटर करेगा ही ना। आप पैसा दे रहे हो इतना, तो आप प्रैक्टिकल गाड़ी ही लोगे। तो ऑब्वियसली इनग्रेस आउटग्रेस, आपका कंफर्ट, राइट, ओल्ड। अभी ये गाड़ी जो ले रहा है वो आप सोचो 7 सीटर जो ले रहा है वो अपने लाइफ के किस मोड़ पे खड़ा होगा, राइट। उनके पेरेंट्स जो है वो थोड़े ओल्ड हो चुके होंगे, शायद बच्चे होंगे जो बड़े हो गए हैं या बड़े हो रहे होंगे। सो दोज आर द पीपल who will consider, अगर फैमिली में ले, टैक्सी में चलाओ तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट। लेकिन अगर फैमिली में लेना है आप 7 सीटर, तो वही लोग कंसिडर करेंगे, राइट। तो उनका कंफर्ट भी उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मेरा तो ऑब्वियसली वो कंसिडरेशन था ही कि प्रैक्टिकल होना चाहिए सबके लिए, मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए। लास्ट वाला सीट में बैठो तो इसके लिए भी 2 अलग AC वेंट दिया है, और दोनों का साइड में दे हैव बॉटल होल्डर, कप होल्डर, एंड ये तो मैंने पहले ही बोला है कि देयर आर 6 AC वेंट्स, और जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि पीपल हु डू नॉट प्रेफर AC उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रेफरेंस है ये, कि you can keep your ACs closed, AC vents closed.
Till now, how many kilometers have we driven? 4464 4500 4,500 किलोमीटर चला है। इसका फर्स्ट सर्विसिंग कब है? बस सर्विसिंग हो गया है, ओके। सेकंड सर्विसिंग 10,000 किलोमीटर में होगा, लेकिन टाइम हो गया है। तो मतलब अगर मतलब अभी भी देना चाहो दे सकते हो, लेकिन 10,000 किलोमीटर तक भी वेट कर सकते हो। वहाँ से एक्चुअली किया से मेरे को कॉल किया था उन लोगों ने पूछने के लिए किलोमीटर कितना हुआ है। अगर किलोमीटर मतलब 10,000 के आसपास होगा तो वो लोग भी बुला के आएंगे, बोलेंगे कि चलो करवा लो। तो होपफुली अगर ज़्यादा चलाया और भी कुछ लंबे लंबे ट्रिप्स मारे तो हो जाएगा। किया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ये गाड़ी फुल्ली लोडेड है। जो भी आप फीचर बोलो वो इसमें है। क्रूज कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, सब कुछ है इसमें। इसका डिस्प्ले बहुत बड़ा है। द डिस्प्ले इज वेरी बिग। यहाँ पे इसका रेन गार्ड भी है। इफ यू कैन सी देयर आर सन गार्ड ऑल्सो। It's all given. The car is completely features. You just name a feature and the car has. रेन गार्ड तो अलग से लगा है ना? Oh, rain guard we have added separately. अलग से लगा है। Oh, अच्छा, okay. तो क्या क्या फीचर है जो तुम थोड़ा we have spoken in our earlier videos, but still if you can do a quick recap. The important features में आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे डे टू डे ड्राइविंग में जो लग रहा है वो है सिंगल पेडल ड्राइविंग। ठीक है, काफ़ी ट्रैफिक में चलाते हैं यूजुअली हम लोग। सिंगल पेडल ड्राइविंग में होता क्या है कि रीजन मोड मैक्स में रहता है। तो उसमें क्या होता है कि एक्सेलरेटर आप जितना छोड़ोगे तो ब्रेक भी लगता है, राइट? तो और एक्सेलरेटर दबाओगे तो चलता है। सो ये बहुत ही कन्वीनियंट टाइप का चीज़ हो जाता है व्हेन इट कम्स टू वेरी वेरी बम्पर टू बम्पर। तो ठीक है यार, इंडिया में आपको पता है ये सब टर्म्स बोल के क्या होगा, कैसे लोग चलाते हैं, राइट? आगे से, पीछे से, लेफ्ट से कोई घुस आ रहा है, कुछ कर रहा है, राइट? अभी ये बड़ी गप्पे हाँकने से तो बात ही बनती है। इंडिया में हम लोग बहुत ही अजीब वो गरीब लोग हैं और अजीबो गरीब तरीके से गाड़ी चलाते हैं, राइट? लेकिन उसमें भी स्ट्रेस थोड़ा कम होता है जब आप देख रहे हो कि कोई इधर से घुसाने का कोशिश कर रहा है, उधर से घुसाने का कोशिश कर रहा है। ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन यूज़ योर सिंगल पेडल ड्राइविंग। सो ये सबसे अच्छा फीचर लगता है मुझे। सेकंड चीज़ जो अच्छा लगता है वो है आपका वो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। लेन कीप असिस्ट का जो फीचर है वो हाईवे में एडास का फीचर है। हाईवे में काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा स्ट्रेस रिलीफिंग फीचर है। आराम से अपने ऑटोमेटिकली गाड़ी अपना लेन को पकड़ के और चलते रहता है, राइट? सो दैट इज़ अ वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल फीचर टू हैव इन अ कार। ठीक है, हाँ, इसमें और भी चीज़ें हैं, सेफ्टी फीचर्स वगैरह हैं। एक सेफ्टी फीचर है फॉरवर्ड कॉलिजन, और लोग टेस्ट भी कर रहे हैं किसका फॉरवर्ड कॉलिजन कितना बेटर है एंड ऑल दैट। वीडियोस डाल रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं सबसे अच्छा किसका है, XCV9 है या ये है, या फिर और भी कंपैरिजन में 2-3 और गाड़ियां डाल दी हैं। एडास टेस्ट हो रहा है, वीडियो डाल रहे हैं लोग। बेकार चीज़ है फॉरवर्ड कॉलिजन, मतलब अवॉइडेंस। इंडिया में नहीं करेगा वो काम आपका। अचानक से गाड़ी ब्रेक मार दिया, कुछ भी इधर उधर कहीं से भी कुछ भी आता है, राइट? एक बाइक आएगा, एक कुछ भी आएगा, फटाक से ब्रेक मारेगा। मैंने तो अच्छा है वो फीचर मतलब दिया है, लेकिन ऑफ कर दिया है मैंने। दूसरा फीचर है, शुरू में तो वी वर फेसिंग दैट आई वाज आल्सो ड्राइविंग, अचानक से ब्रेक लग गया, अरे क्या हुआ? और जर्क बहुत जोर से होता है। तो ये कोई इम्पोर्टेंट फीचर नहीं है। आप इसको ये सब
तामझाम में मत जाओ। लेकिन हाँ, एक अच्छा सेफ्टी फीचर है इसी एडास में ही, वो है कि आपका ऐसे आप या मतलब रिवर्स कॉलिजन का जो असिस्टेंस है, दैट इज़ अ गुड थिंग। जब आप सोचो कि बहुत ही ट्रैफिक वाले प्लेस में बैक कर रहे हो अपनी गाड़ी, तो कोई अगर आ जाता है अचानक से देन, और तुम नोटिस नहीं कर रहे होते हो, तभी वो ब्रेक मार देता है। सो वो एक अच्छा फीचर है। बाकी तो देखो, सबसे प्रैक्टिकल फीचर्स मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तामझाम तो सब चीज़ों में रहता है, बहुत कुछ रहते हैं। इम्पोर्टेंट फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ है। और लोग बोलेंगे कि ये कैसा है आपका जो चार्जर ढूंढने वाला एक एप्लीकेशन है, जो नेक्स्ट चार्जर आपका कितना दूर है। मैंने ट्राई नहीं किया है, क्योंकि जब भी मैं लंबे ट्रिप में जाता हूँ तो मैं प्लान कर लेता हूँ कि चार्जिंग करना किधर है, तो मुझे पता रहता है, तो मैं गूगल मैप में सेट कर देता हूँ। हो सकता है जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब अनप्लैन्ड तरीके से चल रहे होंगे, उनके लिए वो फीचर इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन मुझे अभी तक उसका ज़रूरत पड़ा नहीं। ठीक है, यही है मेन मतलब ऑन अ डे टू डे मुझे लगता है ऑन द टॉप ऑफ माई हेड ऑब्वियसली काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आपका चार्जिंग पैड है यहाँ पे, जिसमें आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं ऑल दैट। तो दिस इज द चार्जिंग पैड। चार्जिंग पैड पे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। हाँ, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो नहीं है। हाँ, वही मैं बोलने वाली थी, नहीं है, ठीक है, नहीं कि जरूरत किया है। सब कुछ दे दिया, एक ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए था। रखना चाहिए था, लेकिन उसका क्या है ना, वो यू कैन ऑल्सो। अरे यहाँ पे मैं अभी कैसे घुसूं? तो ব্রেজারটার পেছনে না এই গাড়িটা যা এটা খালি হোক, তারপরে যেতে পারবো। এখানে যাওয়া যাবে না, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। তাহলে এদিক দিয়ে চলে I যাবে, have to go this side only, I cannot go ঘুরে this ঘুরে side। যেতে পারবে। अगर मैं इधर अभी लगाता हूँ, ये लोग तो लगाने देने वाले नहीं है, घुसने देंगे नहीं। इसलिए मैं इस तरह ये वाला रोड अवॉइड करता हूँ। और एक अच्छा चीज़ है कि नॉइज़ कैंसलेशन। बाहर का ट्रैफिक आप देख रहे हो, हाउ मच ट्रैफिक इट इज़, इट्स अ पीक बैंगलोर ट्रैफिक आवर, बट अंदर में नॉइज़ एकदम भी नहीं है। तो ये जो नॉइज़ कैंसलेशन है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी दैट गिव्स यू अ वेरी कंफर्टेबल जर्नी, अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर डे टू डे ट्रैवल, डे टू डे ऑफिस रन्स। म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है। और पहले मैंने कोई एक वीडियो में बोला था कि यू हैव मल्टीपल स्पीकर्स, तो देयर इज़ अ ऑप्शन वेयर यू कैन shut it off the music from the passenger seat, so only the driver seat and the co-driver seat can hear the music. The passengers can sleep if they want. So these are very minute details, very minute features. Our version is HTX Plus, and it's fully loaded. These are very minute thoughts what Kia has put into. And in the beginning, while buying, you may not give priorities to this kind of features, but while in the long run, when you have family, you are going with your family, all these features will be very helpful. The car has a air purifier also, so that is also a very good feature actually. So Kia has put a lot of effort to make this HTX Plus version better than the market, and I think it's totally worth to spend 27 lakh for a 7-seater car, which is fully loaded with so much features. The big features so obviously, but the small ones also add a lot of value to your day-to-day
traveling experience. Anything you would like to conclude? No, that's all from our side. Thanks for watching. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and hit the bell button. Thank you. Bye. ये जो छोटा छोटा फीचर का बात किया मैंने, तो ये देखिए जब डोर ओपन होता है तो यहाँ पे एक लाइट जलता है किया करके, बंद करो तो इट गोज ऑफ. तो पहले तो व्हेन वी बॉट आई थॉट इट्स अ नाइस थिंग टू सी, नाइस डिज़ाइन, बट लेटर आई रियलाइज्ड जब हम लोग कार स्टॉप करते हैं व्हेन इट्स इन द इवनिंग, तो यहाँ पे तो पूरा डार्क रहता है रोड साइड में, कभी स्टॉप करना पड़ा तो दिस लाइट गिव्स यू अ क्लैरिटी, यू नो, कि कुछ है या नहीं, पैर जहाँ पे रख रहे हो वहाँ पे कचरा है, स्नेक है, डॉग्स है, कुछ है कि नहीं, बिकॉज व्हेन इज पिच डार्क यू कांट सी वेयर यू आर पुटिंग योर फीट. So this kind of small minute details are very Kia has thought a lot and they have given lot of minute features जो आपका डे टू डे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बहुत रिच करता है.